Hello student, today I am teaching you social science for class 8th. Our today's topic is the first step towards women's education. So this is the chapter 9, Social and Religious Awakening in India. This is your history chapter 9. So as in my previous video, I taught you about position of women in Indian society, then against sati, and then position of widow and widow remarriage, then child marriage, after that female infanticide. Now the first steps towards women's education. So many reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. When schools were not first opened in the mid-19th century, many people opposed them because they believed that girls should not be exposed to outside world. तो जो इंडियन जो विमेंस थी, they are totally be not sended to school at the beginning because of their narrow-minded type of societies, people thinking towards them. So many reformers felt that education is also very essential for the girl child also. So for improving their condition, when schools were first opened in 19th century, जब 19th century में स्कूल नए नए खोले गए, many people opposed and they believed that the girl should not be exposed to the outside world, कि बाहर उसको expose नहीं करना है, दिखाना नहीं है. So Vidyasagar was a pioneer in organizing women education in Bengal. He organized 35 girls' schools in Bengal, many of which is ran at his own expense. So एक हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, सबसे पहले विद्यासागर, जिन्होंने सबसे पहले विमेन एजुकेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोली बंगाल में, एंड ही ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल. और उसके बाद उन्होंने बंगाल में 35 अदर ऐसे स्कूल ऑर्गेनाइज करे, खोले, और उसमें भी उन्होंने अपने एक्सपेंस से वो खोले. एज secretary of the Bhutan school, he was one of the pioneer of higher education for women. तो वो हायर एजुकेशन के एक पॉइनियर वो बंदे बने, रिफॉर्मर्स बने. देन दादा भाई नरोजी लेड द फाउंडेशन फॉर फीमेल एजुकेशन. उसके बाद दादा भाई नरोजी भी आए, जिन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए आगे कदम उठाया. इन बॉम्बे ही वॉज अ पॉइनियर इन इस्टेब्लिशिंग द स्टूडेंट लिटरेसी, और इन्होंने स्टूडेंट्स को लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोशल सोसाइटी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करी. एंड दे ऑर्गेनाइज अ लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोशल सोसाइटी इन बॉम्बे विच टूक द लीड इन प्रमोटिंग फीमेल एजुकेशन. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया विमेन एजुकेशन को बढ़ाने में. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर urging the parents to send the girls to school for education. तो डोर टू डोर जाके उन्होंने पीपल्स को अवेयर किया और गर्ल बेबीज़ को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोवोक किया. ही वॉलंटियर्ड टू टीच विदाउट टेकिंग मनी व्हेन द फर्स्ट गर्ल स्कूल वॉज ओपन बाय द सोसाइटी इन बॉम्बे. तो वो खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे विदाउट एनी मनी. ओके. अदर रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र लाइक ज्योति रॉय फुले started a girls' school at Pune, and soon many other schools came up in the region by late 19th century. Then schools for girls were set up by the Arya Samaj in Punjab. Then in Muslim household also in North India, some women learned to read the Quran in Arabic. तो मुस्लिम परिवार में भी नॉर्थ इंडिया में women's को पढ़ाना शुरू किया. Some reformers even reinterrupted the verses of Quran and tried to promote women education. तो कुरान की जगह और कोशिश किया गया कि उनको और चीज़ का भी नॉलेज प्रोवाइड किया गया जाए. उर्दू नावल टू encourage women to read about religions and how to manage their households so that they could become aware of their duties and responsibilities. तो उनको उर्दू भी पढ़ाई गई, उर्दू नॉवेल्स पढ़ाए गए, जिनमें उनको नॉलेज प्रोवाइड किया गया कि हाउ दे हैव टू बी परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ at their home only. So
देन केशव चंद्र सेन एजुकेटेड दैट विमेन शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड, ठीक है, तो ये भी एक और वन ऑफ द रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर द विमेन एजुकेशन, ठीक है. नाउ women stepped into writing. So by the end of the 19th century, many women trained to be doctors and teachers. तो बहुत सी ऐसी जो लेडीज़ थी उनको डॉक्टर और ट्रेनिंग एज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया. सम ऑफ देम स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग देयर व्यूज़ अपॉन द प्लेस ऑफ women इन सोसाइटी. तो अब जब उनको पढ़ना आ गया तो दे स्टार्ट राइटिंग देयर ओन ऑटोबायोग्राफी. ओके, सो इन बंगाल इन द अर्ली 19th century, Raj Sundari Devi, a young married girl, learned to read the scenery of her kitchen. Okay, तो उन्होंने अपने किचन के बारे में अपना उसमें लिखा है. एंड लेटर शी रोड द ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो कि है अमर जीवन. इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज. देन देर आर सो मेनी अदर लेडीज़ हु got education and then they wrote about their own life. Now, women's role in the freedom struggle. So in the 20th century, women played an active role in the struggle for freedom. They participated in large numbers in agitation against the partition of Bengal and in non-cooperation and civil disobedience movements led by Gandhi ji. तो 20th century में women's ने भी बहुत actively पार्टिसिपेट किया अपनी फ्रीडम को गेट करने के लिए, ठीक है. और जितने भी बंगाल में जो मूवमेंट्स हुए थे पार्टीशन के टाइम पे उसमें वो गांधी जी के साथ पूरा बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया. वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी टूक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. फुल वोटिंग राइट्स वर गिवन टू वीमेन. तो आज़ादी के बाद वीमेंस को वोट देने का अधिकार मिला. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटी कंप्लीट इक्वालिटी टू मैन एंड वुमेन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेंस को एक गारंटी मिलती है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा एज वी ट्रीट द मैन्स. नाउ challenges faced by reformers. So when the social reforms were aiming at reforming the society, at the same time they were opposed by orthodox sections of the Indian society. तो जैसे जैसे जो हमारे रिफॉर्मर्स थे जिनका एम था सोसाइटी में चेंजेस लाना, तो उनके साथ साथ कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप्स ऑफ पीपल भी थे जिनकी सोच काफ़ी नैरो माइंडेड थी, जो कि बहुत पुराने विचारों के थे. द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एनी टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, while the reformer proclaimed that scriptures did not sanction and subjugations of women's. वो अभी भी women's की पढ़ाई, women's के बाहर निकलने के खिलाफ थे. The different opinions put forward by reformers not only led to debate that attacked on the reformers. सिर्फ वो अपना डिबेट ही नहीं देते थे, वो they attacked on the reformers. So educated people from the Indian middle class came forward to reform the Indian society. The work done by them and still remembers today. तो जो मिडिल क्लास के पीपल्स थे उन्होंने कोशिश किया और वो आगे आए, रिफॉर्म्स किया, जिसकी वजह से इंडियन जो विमेंस हैं उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक सुधरी.